السلام علیکم پیارے دوستو، آر جی اردو سٹوری میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ایاز خان شمالی پاکستان کا ایک بہت بڑا زمیندار تھا۔ وہ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار تھا، لیکن اس کا بھائی باز خان جاہل اور وحشی تھا۔ ایاز خان نے اپنی محنت اور قابلیت سے لاکھوں روپے کمائے، بہت سے باغ خریدے، ہزاروں بھیڑ بکریاں خریدیں اور زمینوں کا تو کوئی حساب ہی نہ تھا۔ لیکن باز خان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، لوگوں کو لوٹنا، چوری کرنا اور اپنا پیٹ پالنا، بس یہی اس کی زندگی تھی۔ ایاز خان کا صرف ایک لڑکا تھا، نیاز خان۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر نیک اور سمجھدار انسان بنے، لیکن باز خان کے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے نشانہ بازی سیکھیں، لوٹنے اور لوگوں کو مارنے میں ہوشیار ہوں۔ خدا کی قدرت کہ ایاز خان سخت بیمار پڑ گیا اور اس کے زندہ رہنے کی ساری امیدیں ختم ہو گئیں۔ اس نے مجبوراً اپنا سب کچھ باز خان کے سپرد کر دیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ نیاز خان کی پرورش اچھی طرح کی جائے اور جب وہ جوان ہو تو ورثہ اسے دے دیا جائے۔ ایاز خان کی وفات کے بعد باز خان نے اپنے بھتیجے نیاز خان پر بہت ہی ظلم کیا اور نوکروں کی طرح رکھا۔ باز خان کے لڑکے اسے بات بات پر ٹھوکریں مارتے، اپنا جھوٹا کھانے کو دیتے اور کبھی اسے یتیم اور فقیر بھی کہتے۔ نیاز خان سمجھدار باپ کا سمجھدار بیٹا تھا۔ وہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ ابھی اس کا لڑکپن ہے، وہ اپنے چچا اور اس کے شریر بیٹوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ہر کڑوی بات کو کڑوی دوائی کی طرح ہی پی جاتا اور زبان سے اف تک نہ کرتا۔ جب وہ جوان ہوا اور اس کے ہاتھ پیروں میں جان آئی تو باز خان بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کے بیٹے اس سے علیحدہ ہو کر رہنے لگے تھے۔ نیاز خان نے بڑی مشکل سے اپنی جائیداد، روپیہ اور ورثے کا سب کچھ حاصل کر لیا اور اپنے باپ کا کام شروع کر دیا۔ چچا اور چچا زاد بھائیوں کے ظلم برداشت کرتے کرتے وہ بھی اتنا ظالم اور سنگ دل بن گیا تھا کہ اب غریبوں پر ظلم ڈھانے سے اسے سکون ملتا تھا۔ لیکن اتفاق سے اس کی شادی ایک ایسی عورت سے ہوئی جو بہت عقل مند اور سوجھ بوجھ والی تھی۔ وہ ہمیشہ غریبوں سے ہمدردی کرتی اور نیاز خان کو سمجھا بجھا کر ظلم سے باز رکھتی۔ رعایا نیاز خان کی بیوی کو دعائیں دیتی اور کہتی کہ خدا اس رحم دل اور غریب پرور عورت کو ہزاروں برس زندہ رکھے۔ شادی کے 2 سال بعد نیاز خان کے ہاں ایک خوبصورت اور پیاری لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام شاہدہ رکھا گیا۔ لیکن اب اس ننھی بچی نے بیٹھنا ہی سیکھا تھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ نیاز خان کو بیوی کے مرنے کا بے حد ملال ہوا اور وہ ایک حد تک دیوانہ ہو گیا۔ پہلے جیسے ظلم و ستم کرنے لگا، لوگ اسے کسی بھی وقت ہنستا ہوا نہ دیکھتے۔ وہ اگر کبھی مسکراتا تو اس وقت جب اس کی گود میں ننھی شاہدہ ہوتی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنی اس پیاری بیٹی کی خاطر کبھی دوسری شادی نہیں کرے گا۔ نیاز خان نے شاہدہ کی پرورش کے لیے ایک دائی مقرر کر دی، خود بھی اپنا زیادہ تر وقت اس کی دیکھ بھال میں گزارتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور شاہدہ اتنی بڑی ہو گئی کہ اب اس کا دل چاہتا تھا کہ اس کے ہم عمر بچے ہوں اور وہ دن رات ان کے ساتھ کھیلے، باتیں کرے اور ہنسا بولا کرے۔ لیکن نیاز خان کی لمبی چوڑی کوٹھی کے ارد گرد تو کیا، دور تک بھی کوئی بچے نظر نہیں آتے تھے۔ تنہائی کی وجہ سے شاہدہ رنجیدہ اور چپ چاپ رہنے لگی۔ نیاز خان اس کی تفریح کا بہت سا سامان مہیا کرتا، لیکن بچوں کے بغیر وہ سب کچھ شاہدہ کے لیے بیکار تھا۔ نیاز خان سوچا کرتا کہ میں اپنی بیٹی کا دل بہلانے کے لیے کہاں سے ساتھی لاؤں اور کس طرح اسے خوش رکھوں، لیکن اس کے ذہن میں کوئی تدبیر نہ آتی۔ ایک روز نیاز خان اپنے گھوڑے پر سوار کہیں سے واپس آ رہا تھا کہ اس نے دیکھا اس کے گاؤں کے قریب خانہ بدوشوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ لوگ فارس اور بلوچستان سے آیا کرتے تھے، اپنے ساتھ چاقو چھریاں اور گھوڑے لاتے اور مختلف شہروں میں گھوم پھر کر فروخت کیا کرتے۔ ان خانہ بدوشوں میں کچھ بازیگر بھی ہوتے اور کچھ سپیرے بھی۔ نیاز خان ہمیشہ ان سے نفرت کرتا تھا، چونکہ یہ لوگ چور بھی ہوتے تھے، اکثر نجومی بن کر لوگوں کو خزانے کا پتہ بتانے کا لالچ دیتے اور کسی نہ کسی طرح ان کو لوٹ کر بھاگ جاتے۔ نیاز خان گھوڑے کو روک کر ان لوگوں کے ڈیروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ ایک بوڑھے سپیرے پر پڑی جو بیٹھا ہوا سانپ کو دودھ پلا رہا تھا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر کچھ بچے بھی کھیل رہے تھے۔ نیاز خان سپیرے کو دیکھتا ہوا گھر کی جانب روانہ ہوا،
लेकिन छोटी सी पहाड़ी के पास पहुंचते ही इसने फिर घोड़े को रोक लिया। उसकी नजर एक छोटी लड़की पर जमकर रह गई। लड़की भला की हसीन थी। गले में पुराने सिक्कों की माला पड़ी हुई थी। लंबा कुर्ता, ऊंचा पाजामा पहने हुए थी। शक्ल सूरत और रंग रूप शाहिदा जैसा था। अचानक उसे ख्याल आया, मेरी शाहिदा तन्हाई की वजह से हर वक्त उदास और गमगीन रहती है। अगर ये लड़की मुझे मिल जाए तो शाहिदा की अच्छी सहेली बनकर रह सकती है, लेकिन ये मुझे किस तरह मिल सकती है। फिर इसने इधर उधर देखा, लेकिन करीब में कोई नजर न आया। उसने सोचा कि मैं इस लड़की को उठाकर ले जाऊं, मुमकिन है कोई ना देख सके और चंद रोज की तलाश के बाद सब्र करके बैठ जाएं। फिर मैं इनका नुकसान उनके जानवर खरीद कर पूरा कर दूंगा। अगर उन्हें मालूम हो गया कि इस लड़की को मैं उठाकर ले गया हूं तो फिर क्या होगा। हाँ, मैं उन्हें रुपया देकर माला माल कर दूंगा। इतनी दौलत दूंगा ये अपनी लड़की को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। नियाज खान ने एक बार फिर दूर तक निगाह दौड़ाई और जब उसे कोई भी दिखाई ना दिया तो उसने लड़की के करीब जाकर जबरदस्ती उसे उठा लिया और घोड़े पर बिठाकर घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर नियाज खान ने कमाल को बुलवाया। कमाल उसकी ज़मीनों वगैरह का हिसाब किताब रखने का काम करता था और नियाज को उस पर पूरा पूरा भरोसा था। इसलिए इसने कमाल से कहा, मकान के तहखाने में इस लड़की के रहने का माकूल इंतज़ाम करो और इसे इस तरह रखो कि किसी को मालूम ना होने पाए। कमाल लड़की को लेकर चला गया तो नियाज बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा, 10-5 रोज में खाना बदोशों का हाल मालूम हो जाएगा। अगर उन्होंने शोर मचाया तो मैं इस लड़की को तहखाने से निकालकर अपनी बेटी से उसकी मुलाकात कराऊंगा। फिर दोनों बड़े मज़े से रहेंगी, खेलेंगी, बातें करेंगी और खुश रहेंगी। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और वो सो गया। उसे क्या मालूम था कि खाना बदोशों में क्या खलबली मची हुई थी। ये लड़की जिसका नाम हुस्ना था एक सपेरे की बेटी थी। इस सपेरे की बेटी जिसका बूढ़ा बाप सांप को दूध पिला रहा था। खाना बदोशों ने छोटी पहाड़ी के करीब रेत पर घोड़े के सुमों के निशान देखे तो वो समझ गए कि कोई घुड़सवार ही हुस्ना को उठाकर ले गया है। फिर सपेरों ने कबीले की तमाम औरतों और मर्दों को जमा किया और टोली बनाकर घोड़े के सुमों के निशानों पर चल पड़े और चलते चलते नियाज खान की कोठी के बड़े फाटक पर जा पहुंचे। नियाज खान बेखबर सो रहा था, लेकिन खाना बदोशों के शोर गुल की आवाज कान में पहुंचते ही वो उठ बैठा और मुलाजिम को बुलाकर पूछा। मुलाजिम ने कहा, कोठी के फाटक पर खाना बदोश लोगों की एक बड़ी जमात खड़ी हुई है और अंदर दाखिल होने के लिए शोर मचा रही है। नियाज खान पहले तो सहम गया, लेकिन फौरन ही उसे ख्याल आया कि डरने से ये लोग और भी शेरों की तरह हो जाएंगे। मुझे दिलेरी से सीना तानकर इनके सामने जाना चाहिए। वो बिस्तर से उठा और सर पर पगड़ी रखकर बाहर निकला। खाना बदोश लोग उसे देखकर खामोश हो गए। नियाज खान ने अपनी रोबदार आवाज में मालूम किया, तुम लोग यहाँ क्यों जमा हुए हो? उन्होंने एक ज़बान होकर ललकारते हुए कहा, हमारी एक लड़की को इस कोठी में लाया गया है, हम सब उसे लेने आए हैं। ये झूठ है, यहाँ कोई लड़की नहीं लाई गई। नियाज खान ने चीखते हुए कहा, हम इस कोठी की दीवारों को गिरा देंगे और अपनी लड़की को ले जाएंगे, वरना शराफत से उसे हमारे हवाले कर दो। खाना बदोशों ने बिगड़ते हुए कहा, अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी लड़की को इस कोठी में छुपा रखा है तो तुम लोग आकर खुद तलाशी ले लो और अपना इत्मीनान कर लो। नियाज खान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे हकीकत में उसे लड़की का इल्म ही न था। फिर खाना बदोशों ने कोठी में दाखिल होकर तलाशी ली। कमरे, अस्तबल, छत, गर्ज कोई जगह ऐसी ना थी जहां उन्होंने लड़की को ना देखा हो। फिर नियाज खान ने कहा, अब तुम्हारी औरतें जनाना मकान की भी तलाशी ले सकती हैं। औरतें जनाना मकान में दाखिल हुईं। बावर्ची खाने से लेकर सोने के कमरे तक हर हिस्से की तलाशी ली, मगर कोई नतीजा ना निकला और मायूस होकर बाहर आ गईं। नियाज खान ने कहा, देख लिया तुमने, बस अब वापस जाओ। लेकिन खाना बदोश फिर भी जिद करते रहे और कहते रहे, हमारी लड़की को वापस कर दो। हुस्ना की माँ सीना पीट पीट कर रो रही थी और दामन फैला फैला कर कह रही थी, जालिम, तो इस बदनसीब माँ का दिल ना दुखा और मेरी प्यारी बच्ची मुझे वापस दे दे। सपेरा बार बार कहता था, तुम हमारे जानवर मुफ्त में ले लो, हमारी बेटी हमें दे दो। मगर नियाज खान के दिल पर सपेरों की इन बातों का बिल्कुल असर ना हुआ।
बल्कि इसने अपने मुलाजमों को हुक्म दिया, अगर ये जलील लोग तलाशी लेने के बाद भी अपनी जिद पर कायम हैं तो इन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दो और फाटक बंद कर दो। पठान मुलाजिम जैसे ही आगे बढ़े, सपेरे ने ललकारते हुए कहा, खबरदार, अगर आगे बढ़े तो याद रखो नतीजा बहुत बुरा निकलेगा। ये बलोची खंजर तुम्हारे सीनों में घोंप दिए जाएंगे। मुलाजिम रुक गए। फिर सपेरे ने, जो कबीले का सरदार भी था, नियाज खान से कहा, खान साहब, आप गांव के मालिक हैं, आप जमींदार हैं, लेकिन आपने ऐसी जलील हरकत की है कि हम नीच लोग भी नहीं करते। पहाड़ी से यहाँ तक घोड़े के सुमों के निशान मौजूद हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि हमारी लड़की यहाँ लाई गई है। अगरचा हम उसे तलाश करने में नाकाम हुए, मगर हमारा ईमान है कि वो यहीं है। अगर तुम उसे वापस नहीं करोगे तो याद रखो बहुत नुकसान उठाओगे। हमें अपनी औलाद से ज़्यादा कोई चीज़ अजीज़ नहीं होती। खोई हुई लड़की को हासिल करने के लिए जो तदबीर भी हमारे जहन में आएगी, उस पर अमल करने से कोई ताकत भी हमें नहीं रोक सकती। नियाज खान खामोश खड़ा रहा और खाना बदोश लोग वापस चले गए। नियाज खान बेहद परेशान था। वापस कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगा। दूसरे दिन सूरज निकलते ही खाना बदोशों ने अपने डेरे, कनाते और खैमे उखाड़कर घोड़ों और खच्चरों पर लादे और अपना सामान उठाकर किसी दूसरे इलाके की तरफ चल दिए। नियाज खान को नाश्ता करने से पहले ही मालूम हो गया कि खाना बदोश इस इलाके को छोड़कर कहीं और चले गए हैं। वो इस खबर से बहुत खुश हुआ और इत्मीनान का सांस लेकर नाश्ता किया। नियाज खान ने हसना की देखभाल के लिए कई मुलाजिम मुकर्रर कर दिए और एक नौकरानी को भी उसके पास छोड़ दिया। उसके लिए उम्दा उम्दा कपड़े सिलवाए, शानदार मसेरी और कीमती बिस्तर मंगवाया ताकि उसे किसी किस्म की तकलीफ ना हो, बल्कि वो आरामदा सामान से खुश होकर रहना पसंद करने लगे। 1-1.5 हफ्ता गुजर गया, लेकिन कोई ख़ास बात ना हुई। सिर्फ 2-4 बार ये सुनने में आया कि चंद खाना बदोश औरतें बावर्ची खाने की तरफ घूमती हुई देखी गई हैं। नियाज खान ने इस बात पर कोई तवज्जो न दी, चूँकि उसका ख्याल था कि ये औरतें खाना बदोशों के किसी और कबीले से ताल्लुक़ रखती होंगी और खाना चुराने की नीयत से बावर्ची खाने के आसपास घूमती होंगी। एक दिन शाहिदा खाने के बाद सुस्त पड़ गई, फिर उसका सर घूमने लगा और बिस्तर पर लेट गई। नियाज खान ने सोचा कि मौसम की तब्दीली से तबीयत खराब हो गई, लेकिन सुबह वो 8 बजे तक सोकर ना उठी। हर रोज़ सुबह सवेरे उठ बैठती थी, लेकिन आज न जाने क्या हुआ जो वो सो रही थी। दाई ने उसे बेदार करने के लिए झंझोड़ा, लेकिन वो ना उठी। फिर इसने कहा, बेटी शाहिदा, आज बहुत देर हो गई, सूरज कितना ऊपर आ चुका है, अब उठ जाओ, नाश्ता भी ठंडा हो रहा है। लेकिन शाहिदा बुत बनी सीधी लेटी हुई थी, ना हिलती थी ना जुलती थी। दाई घबरा गई और मुलाजमों से बोली, जाओ जल्दी करो, खान साहब से कहो कि अपने ख़ानदानी हकीम साहब को लेकर फ़ौरन आ जाओ, शाहिदा बीबी की तबीयत अच्छी नहीं है। खान साहब हकीमों को साथ लेकर दौड़ते हुए आए। हकीम जी ने शाहिदा की नब्ज़ देखी और अपने थैले में से दवा निकालकर उसके मुंह में रखी। फिर सर पर एक दवा मिली, लेकिन उसने आंख न खोली। दाई खान साहब से कहने लगी, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि मेरी बच्ची पर किसी ने जादू किया है, लिहाजा मुल्लाओं और सयानों को बुलवाइए। खान साहब भी बेहद परेशान थे। उन्होंने फ़ौरन ही मुलाजमों को करीब के गांव से मौलवी और सयानों को बुलाने के लिए भेज दिया। मौलवी, मुल्ला और सयानों को जादू मंत्र तोड़ने के जितने अमल और वजीफे याद थे, एक एक करके सबने तावीज़ लिख लिख कर उसके गले में डाले, बाहों पर और कमरे की खिड़कियों में लटकाए। लेकिन शाहिदा जिस तरह लेटी हुई थी, इसी तरह लेटी पड़ी रही। खान साहब ने मजबूर होकर हकीमों को फिर बुलवाया और दोबारा उसकी नब्ज़ देखने के लिए बिठा दिया। लेकिन हकीम साहब ने नब्ज़ पर हाथ रखते ही कह दिया, अब क्या ढूंढा जाए, खुदा ने अपनी अमानत वापस ले ली। खान साहब के मुंह से निकला, अमानत वापस ले ली गई? मेरी शाहिदा मुझसे छीन ली गई? मौत के फरिश्ते ने सपेरे की बेटी को छीनकर बदला ले लिया और वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़े। मुलाजमों ने दौड़कर उन्हें उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। एक तरफ शाहिदा की मैयत को नहलाया जा रहा था और दूसरी तरफ नियाज खान को होश में लाने की दवा दी जा रही थी। आखिर बड़ी मुश्किल से वो होश में आया और लोगों ने तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन बेटी की जुदाई का गम
मामूली दर्जे का नहीं था और बेटी भी ऐसी लाडली थी कि जिसकी खातिर दूसरी शादी ना करने की कसम खाई थी और जिसकी तन्हाई को दूर करने के लिए वो खाना बदोशों की लड़की को उठाकर लाया और जलील हुआ। गर्ज ये, लोगों ने खान साहब को संभाला और मैयत को ले जाकर दफना दिया। वापसी पर खान साहब ने अपने पलंग से बिस्तर उठाकर एक तरफ फेंक दिया और मुलाजमों से कह दिया कि मेरे कमरे में कोई ना आए। वो पलंग पर लेटकर कुछ सोचने लगा और सोचते सोचते उसकी निगाहें छत पर टिक गईं, जैसे वहां शाहिदा की तस्वीर लटक रही थी और वो उसे देख रहा था। कभी कभी वो सांस लेता और उसकी जुबान से निकलता, अगर मैं सपेरे की बेटी को उठाकर ना लाता तो ये वक्त ना देखना पड़ता। नियाज खान लेटे लेटे खुदा से कहने लगा, ए परवरदिगार, तूने मुझे कितना बड़ा आदमी बनाया। इतनी ज़मीनें, बागों और जानवरों का मालिक हूँ, लेकिन तूने एक हकीर और जलील सपेरे की बेटी के बदले मेरी बेटी को छीन लिया। आखिर ये क्या इंसाफ है। नियाज खान अब अक्सर तन्हा रहता, ना उसमें गुस्सा रहा ना गरूर व तकब्बर। बाहर निकलता तो ऐसा मालूम होता कि नियाज खान बूढ़ा हो गया है। उसकी गर्दन जो ऊपर उठी रहती थी अब झुकी हुई दिखाई देती थी। बाहर निकला हुआ सीना अंदर को धंसता हुआ नजर आया। अब वो किसी पर जुल्म ना करता, बल्कि गरीबों और मजबूरों से ज़मीनों का लगान भी ना लेता। मुलाजमों से भी यही कहता, हर एक से नरमी से पेश आया करो और किसी पर जुल्म ज़्यादती ना करो। इस तरह पत्थर मोम बन गया। नियाज खान ने सपेरे की बेटी हसना को अपनी बेटी की तरह परवरिश किया, उसके आराम का हर लम्हा ख्याल रखा। हसना भी उसे अपना बाप समझती और उसकी खिदमत में लगी रहती। लेकिन इसके बावजूद नियाज खान के सीने में एक दर्द था जो किसी सूरत कम ना होता था। 12 बरस इसी तरह गुजर गए। हसना जवान हो गई। उसे देखकर नियाज खान मुस्कुरा देता, लेकिन फौरन ही उदास हो जाता और सोचता, अगर उसकी शाहिदा जिंदा होती तो आज वो भी जवान होती। दाई जो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी नियाज को समझाती, तसल्ली देती, लेकिन बेटी की जुदाई का गम किसी तरह कम ना होता। एक मर्तबा खाना बदोशों का एक काफिला नियाज खान के गांव से चंद मील के फासले पर उतरा। ये कोई नई बात तो ना थी, साल में 2-4 काफिले उतरा ही करते थे। चूंकि नियाज खान की कोठी से दूसरे गांव तक एक पुख्ता सड़क जा रही थी, उसके दोनों तरफ नियाज खान ने आम के दरख्त लगवा दिए थे और कहीं कहीं कुएं खुदवा दिए थे ताकि राहगीर और मुसाफिर दरख्तों के साए में आराम करें और कुएं का मीठा और ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाया करें। इसी सड़क से बूढ़ी दाइया जीनत भी शाहिदा के निहाल से वापस आ रही थी। सफ़र लंबा था, बेचारी थकान के सबब निढाल होए जा रही थी। आमों के दरख्त देखकर इसने बहली वाले से कहा, बहली को यहाँ रोक लो, मैं थोड़ी देर आम के दरख्त के नीचे आराम करूंगी। बहली वाले ने गाड़ी को रोक लिया। जीनत बीबी अपने 2 खादमों के साथ बहली से उतरकर एक दरख्त के नीचे पत्थर पर बैठ गई। उसी वक्त 4 खाना बदोश औरतें मटके बगलों में दबाए हुए कुएं पर आईं। उन्हें देखकर जीनत बीबी को अचानक अपनी शाहिदा याद आ गई, चूँकि ऐसी ही खाना बदोश औरतों के जादू करने से शाहिदा मर गई थी। ये औरतें पानी लेकर चली गईं तो कुछ और आ गईं, लेकिन ये नौजवान लड़कियों की टोली थी। यूं तो उनमें हर लड़की सुर्ख व सफ़ेद और खूबसूरत थी, लेकिन एक लड़की बेहद हसीन थी। वो भी उन्हीं की ज़बान में बोल रही थी और उन्हीं जैसा लिबास पहने हुए थी। फिर भी उसका शर्मीलापन और उसका हुस्न कह रहा था कि ये लड़की उन सबसे अलग है। उस लड़की को देखते ही जीनत बी को यूं महसूस होने लगा जैसे वो हकीकत में शाहिदा को देख रही है। फिर उसे अचानक से ख्याल आया कि शाहिदा को मरे हुए आज 13 बरस हो चुके हैं। अब उसकी सूरत कैसे नजर आ सकती है? मरने के बाद भी कोई दिखाई देता है। ये सोचकर उसने एक ठंडा सांस भरा और इधर उधर देखने लगी, लेकिन फौरन ही उसकी निगाहें खुद ब खुद उस खूबसूरत लड़की पर जमकर रह गईं। लड़की बार बार उसको देख रही थी और शर्माकर बार बार पीछे हट जाती थी। वो भी सोच रही थी कि ये बूढ़ी औरत इसे गौर से क्यों देख रही है। दूसरी तमाम लड़कियां कुएं से पानी भरकर भी चली गईं, लेकिन वो इसी सोच में खड़ी हुई थी। फिर अचानक वो चौंक उठी और कुएं में डोल फेंककर आहिस्ता आहिस्ता पानी खींचने लगी। ज़ैनब भी उसे देखकर दिल ही दिल में कह रही थी
کہ دوسری لڑکیوں میں کتنی پھرتی تھی لیکن یہ کتنی سست ہے۔ خانہ بدوش لڑکی مٹکا پانی سے بھرنے کے بعد ہمجولیوں کے پیچھے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی بجائے ہمجولیوں کے ساتھ جانے کے وہ زینب بی بی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، بڑی بی، تم اتنی اداس کیوں ہو اور مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ زینب بی نے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی شاہدہ یاد آ گئی۔ وہ جتنی خوبصورت اور حسین تھی اتنی ہی تم بھی ہو۔ جیسے چمکدار دانت اور پیلے پیلے گلابی ہونٹ اس کے تھے ویسے ہی تمہارے بھی ہیں۔ اس جیسی کٹورا سی آنکھیں، پیلی گردن اور سب کچھ وہی ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو آج بالکل تمہارے برابر ہوتی۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے بے اختیار ہو کر خانہ بدوش لڑکی کو سینے سے چمٹا لیا۔ لڑکی اسے تسلی دینے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی اور باتوں ہی باتوں میں اس نے کہا، بڑی بھی، مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ میں پہلے ان خانہ بدوشوں کے ساتھ نہیں رہتی تھی بلکہ کسی اچھے مکان میں آرام سے رہا کرتی تھی اور میری خدمت کے لیے کئی آدمی مقرر رہا کرتے تھے۔ میرا دل ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے گھبراتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ پھر کوئی پختہ مکان ہو، نرم و نازک بستر ہو اور میں وہیں آرام کی زندگی گزارا کروں۔ لڑکی شاید کو اور کچھ کہتی کہ دور سے کرخت آواز سنائی دی، حسنا، تو وہاں کیا کر رہی ہے؟ چل ادھر آ۔ اور وہ اپنا مٹکا اٹھا کر تیز تیز قدموں سے چلتی بنی۔ زینب بھی اٹھی اور بہلی میں بیٹھ گئی۔ چلو جلدی کرو، میری طبیعت گھبرا رہی ہے۔ اور بہلی نیاز خان کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گئی۔ حسنا جب آواز دینے والی عورت کے پاس پہنچی تو اس نے کہا، وہاں کنویں کے قریب ایک پہاڑی عورت بیٹھی ہوئی تھی، بیچاری بہت غمگین اور اداس تھی، میں اس کا حال پوچھ رہی تھی۔ عورت نے ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے اس کی کیا پڑی ہے؟ خبردار جو تو نے کسی سے ہمدردی کی، جا تیرا باپ تجھے بلا رہا ہے۔ لڑکی اچھا کہہ کر ایک طرف چل دی اور عورت اسے کھڑی گھورتی رہی۔ زینب بھی راستے میں اس لڑکی کے متعلق ہی سوچ رہی تھی اور گھر پہنچ کر نیاز خان سے بولی، خان صاحب، یہاں سے 2-2.5 میل کے فاصلے پر خانہ بدوشوں کا ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ میں اس میں ایک لڑکی کو دیکھ کر آئی ہوں جو ہو بہو ہماری شاہدہ ہے۔ بات کرنے کا انداز، شکل و صورت، چال ڈھال، غرض سب کچھ شاہدہ سے ملتا جلتا ہے۔ اگر شاہدہ کو میں اپنی آنکھوں سے قبر میں دفن ہوتے نہ دیکھتی تو میں کہہ سکتی تھی کہ وہ ہماری شاہدہ ہے۔ ممکن ہے میری بوڑھی آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہو، اس لیے خان صاحب آپ جائیے اور دیکھیے کہ وہ لڑکی کون ہے۔ نیاز خان شاہدہ کی موت کے بعد بہت ہی نرم دل، سست اور کاہل ہو گیا تھا، ہر وقت کھویا کھویا سا رہتا تھا۔ لیکن زینب بی بی کی زبان سے یہ باتیں سن کر وہ یوں تڑپ اٹھا جیسے اس کے جسم میں بجلی کی لہریں دوڑنے لگی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں سرخی دوڑ گئی اور وہ زینب بی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو مجھے اسی وقت وہاں لے چلو، میں ان ذلیل لوگوں کو دیکھ لوں گا۔ زینب بھی اس خوف سے کانپ اٹھی کہ خان صاحب اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھیں کہ خانہ بدوش ان کی بے عزتی کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے خان صاحب سے کہا، اس وقت وہاں جانا مناسب نہیں، میرے خیال میں صبح سویرے جانا بہتر ہوگا۔ پھر اس نے نرمی سے سمجھا بجھا کر خان صاحب کو صبح تک کے لیے روک لیا۔ وہ رات بھر بستر پر کروٹیں بدلتے رہے، ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہ جھپکی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو اس نے 2-4 ملازموں کو ساتھ لیا اور زینب بی کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ خانہ بدوش بیدار ہو چکے تھے، عورتیں اور لڑکیاں مٹکا اٹھائے کنویں کی طرف جا رہی تھیں، کچھ بوڑھی اور ضعیف عورتیں آگ سلگانے میں مصروف تھیں۔ کنویں کی طرف جانے والی عورتوں میں نیاز خان نے اس لڑکی کو خود بخود پہچان لیا اور زینب بی سے کہا، یہ ہے میری شاہدہ۔ زینب بی کہنے لگی، میں نہ کہتی تھی کہ میں نے ایک ایسی لڑکی کو دیکھا ہے جو ہو بہو شاہدہ ہے۔ نیاز خان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ آگے بڑھ کر غور سے لڑکی کو دیکھنے لگا، پھر دیکھتے دیکھتے چلایا، یہ چوٹ کا نشان، میری شاہدہ۔ اور اس نے دوڑ کر لڑکی کو سینے سے چمٹا لیا۔ بچپن میں شاہدہ زینے سے گر پڑی تھی اور اس کے بائیں رخسار پر چوٹ لگی تھی، زخم بھرنے کے بعد بھی یہ نشان دور نہ ہوا۔ وہی نشان اس نوجوان اور خوبصورت لڑکی کے بائیں رخسار پر موجود تھا
और इसके शाहिदा होने का सबूत दे रहा था। नियाज खान ने लड़की को सीने से चिमटाए रखा और इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लड़की का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो खामोश थी और कुछ सोच रही थी। अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे एक पर्दा सा आंखों पर पड़ा हुआ था। उसे किसी ने खींच लिया है और उसे याद आया कि वो कभी शख्स को बाप कहकर पुकारा करती थी। इस ख्याल के आते ही वो चिल्लाई, अब्बा जान, मैं तुम्हारी शाहिदा हूँ। तुमने मुझे खुद से दूर क्यों कर दिया? तुम अब मुझे अपने मकान में क्यों नहीं रखते? क्या मुझसे नाराज हो गए हो? अब्बा जान, मुझे तुमसे दूर रहकर बहुत तकलीफ होती है और मैं हर वक्त मुसीबत में रहती हूँ। कहते कहते उसके हाथ पांव सरद पड़ गए और लड़खड़ाकर नियाज खान के कदमों में गिर पड़ी। नियाज खान ज़ैनब बी के साथ मिलकर उसे उठाने लगा। उसी वक्त आम के दरख्तों तले बैठे हुए खाना बदोशों ने उन्हें देख लिया और हुक्के फेंक कर दौड़ते हुए आए और नियाज खान को एक तरफ धकेल दिया। नियाज खान बूढ़े सपेरे को पहचान गया जो उसकी कोठी पर 12 बरस पहले अपनी लड़की लेने के लिए गया था। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और इसने अपनी रोबदार आवाज में कहा, खबरदार बेईमान बदमाशो, तुम मेरी बेटी को हाथ नहीं लगा सकते। मुझे क्या खबर थी कि तुमने किस जादू के जोर से मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया। इस वक्त मैं तुम्हारा जादू तोड़ने की पूरी ताकत रखता हूँ। और इसने लड़की को फिर से सीने से लगा लिया और कहने लगा, मेरी प्यारी शाहिदा, तू मेरी बेटी है। अब मैं तुझे हरगिज जुदा नहीं होने दूंगा। लेकिन उसी वक्त एक नौजवान खाना बदोश ने आगे बढ़कर शाहिदा को नियाज खान से अलहदा कर लिया और कहने लगा, मेरी हसना, क्या तुझे याद नहीं कि मैंने कब्र से तुझे निकालकर दोबारा जिंदा किया और हमेशा के लिए अपना बना लिया था? क्या तू नहीं जानती कि मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि ऐसे हजारों बाप भी नहीं कर सकते। मैं तेरी खातिर अपनी जान को हथेली पर लिए फिरता हूँ। नियाज खान के साथ 4 ताकतवर मुलाजिम भी मौजूद थे और वो खुद भी इतना बहादुर था कि इन खाना बदोशों का जमकर मुकाबला कर सकता था। लेकिन वो खाना बदोश नौजवान की मोहब्बत भरी बातों और लड़की की खामोशी देखकर सहम गया। वो बुत बना हुआ कभी लड़के को देखता और कभी अपनी प्यारी शाहिदा को। बूढ़ा सपेरा आगे आया और नियाज खान से बोला, जैसा आप लोगों को अपनी औलाद से प्यार होता है, इसी तरह हम गरीब लोग भी अपनी औलाद को चाहते हैं। फिर इसने कहका लगाते हुए कहा, देख लिया हुजूर ने एक हकीर सपेरे का इंतकाम। नियाज खान शर्म से पानी पानी हो गया और कहने लगा, बेशक मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मैंने तुम्हारी बेटी हसना को अपनी शाहिदा की तरह नाजों से पाला है। इब्तदा में वो जंगली बिल्ली की तरह खूनख्वार और वहशी थी, हमारी सूरतों से नफरत करती थी, लेकिन बाद में तहजीब सीख गई और मोहब्बत से रहने लगी। तुम जाकर देखो वो पढ़ लिख कर कितनी होशियार और काबिल हो गई है। अगर तुम चाहते हो तो जाकर अपनी हसना को वापस ले आओ और मेरी शाहिदा मुझे वापस दे दो। बूढ़ा सपेरा आंखें निकालते हुए बोला, मुझे वो हसना नहीं चाहिए, वो मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। मेरी हसना उसी रोज मेरे लिए मर चुकी थी जब उसने हमारी फटी हुई कनातें, मेले कुचीले खैमे, खुला आसमान और गरीबों की दुनिया छोड़कर तुम्हारी कोठी की बुलंद रंगीन दीवारों में कैद हुई थी। हम लोग खुली हवा में पलकर जवान होते हैं और 4 दीवारी को बदतरीन कैद समझते हैं। और अब आपकी बेटी मेरी बेटी बन चुकी है। इसे कब्र से निकालकर मैंने जिंदा किया था। वो कैसे? नियाज खान ने दबी आवाज में कहा। सपेरा बोला, आप नहीं जानते, कब्र से निकालकर जिंदा किया था। हम लोगों के पास अजीबोगरीब जड़ी बूटियां हर वक्त मौजूद रहती हैं। जंगलों और पहाड़ों में रहने की वजह से ऐसी ऐसी दवाएं मिल जाती हैं और जिंदा को मुर्दा बना देते हैं। हमने ऐसी ही दवा उसके खाने में मिला दी थी। जब आपने उसे मुर्दा समझकर कब्र में दफन कर दिया तो हम उसे निकाल कर ले गए और दूसरी जड़ी बूटियों से जिंदा कर लिया और समझ लिया कि हमारी बेटी दोबारा पैदा हुई है। ये कोठी में पली हुई लड़की हमारे साथ रहने के लिए तैयार न थी, लेकिन हमने इस पर सख्ती नहीं की, ना जुल्म किया, बल्कि इस लड़के ने अपनी खिदमत और मोहब्बत भरी बातों से इसका दिल मोह लिया और ये खुशी खुशी हमारे साथ रहने लगी। नियाज खान ने अभी कोई जवाब ना दिया था कि नौजवान सपेरा बोला, ये सही है कि ये आपकी बेटी है, लेकिन ये भी सुन लीजिए
کہ थोड़े दिनों के बाद ये मेरी बीवी बनने वाली है, इसलिए मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ सकता। शाहिदा मोहब्बत भरी निगाहों से नौजवान को देखने लगी, लेकिन जबान से एक लफ्ज ना निकला। नियाज खान दोनों की नज़रें देखकर समझ गया कि शाहिदा भी इस नौजवान से बेपनाह मोहब्बत करती है। अगरचा वह मुझसे मिलकर गुजरी हुई बातों में खो गई है, लेकिन क्या करे, इस नौजवान को कभी नहीं छोड़ सकती। इसने आंखें बंद कर लीं और दिल ही दिल में कहा, या मौला, ये तेरा कैसा करम है कि नियाज खान की बेटी एक सपेरे की बीवी बनने वाली है। और उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका सर चकरा गया हो। वो सर पकड़कर एक पत्थर पर बैठ गया और सपेरे से कहा, जलील कमीने, तुम मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दे। बकवास न कर, अब ये मेरी बेटी है, तू इसे हमेशा के लिए भूल जा। अगर अब तूने इसके लिए एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो समझ ले ये बलोची खंजर तेरे जिस्म की बोटी बोटियां कर देंगे। सपेरे ने अपने धुने हुए सीने को भारते हुए कहा, लेकिन नियाज खान पर इसकी धौंस का जर्रा बराबर असर ना हुआ और उसने आजिज़ी से कहा, मेरी तमाम ज़मीनें, मकान और जानवर सब कुछ तुम्हारे बेटे का है। मेरे मरने के बाद मेरे कारोबार का यही मालिक होगा और तुम्हारे साथी मेरे रिश्तेदार हैं। चलो और मेरे साथ चल कर रहो। सपेरे ने गर्दन को झटका देते हुए कहा, बेवकूफ़ आदमी, हम धन दौलत के लालची नहीं हैं, तेरी ज़मीनों की ख्वाहिश नहीं है। हम तेरी कोठी की ऊंची और बुलंद दीवारों की खूबसूरती और तेरे जानवरों की ज़रूरत नहीं। हम नीले आसमान के नीचे खुली जगह में रहते हैं। सारी ज़मीन हमारी है, हम आज़ाद हैं और आज़ादी हमारा ईमान है, जिसे तेरी दौलत हरगिज़ नहीं खरीद सकती। जा और अपना काम कर, आया सुबह के वक्त सुकून खराब करने के लिए। नियाज खान के जिस्म में आग सी लग गई और उसने सोचा, ये कमीना और जलील सपेरा बातों से काबू में नहीं आएगा। इसकी मौत सर पर खेल रही है। मैं इसे अपने पिस्तौल का निशाना बनाकर हमेशा के लिए ठंडा क्यों ना कर दूं। फिर इसने अपनी शेरवानी की जेब में हाथ डालकर पिस्तौल निकाला, लेकिन इत्तफाक से नौजवान सपेरे ने देख लिया। वो फुर्ती से इस पर झपटा और उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया और बोला, खान साहब, आप धोखे से हमें जान से मार सकते हैं, लेकिन याद रखिए, आप क्या, अगर सारी बस्ती भी उठकर आ जाए तो इस लड़की को कोई नहीं ले जा सकता। अब ये इस कबीले की इज्जत है और इज्जत की खातिर हम गरीब खाक नशीन अपनी जान पर खेल जाते हैं। नियाज खान अकड़कर खड़ा हो गया और बोला, अगर तुम्हारी यही मंशा है तो यही सही। मैं अभी तुम लोगों का बंदोबस्त किए देता हूँ और देखता हूँ कि तुम कैसे जिंदा रहते हो। अगर मेरी बेटी को तुमने मुझसे छीना है तो छीन लो, लेकिन याद रखो, इसके साथ मैं तुम सबको भी मौत के मुंह में धकेल दूंगा। ये बात जरा सख्त थी। खाना बदोश कितने ही बहादुर और दलेर क्यों ना हो, लेकिन एक अमीर आदमी के साथियों का मुकाबला करने के लिए सोचना जरूरी था। इस बात को समझते हुए नौजवान सपेरे ने कहा, खान साहब, जाने से पहले एक इम्तिहान और कर लें। ये आपकी बेटी है, इसके जिस्म में आप ही का खून है, लिहाजा इसे आपका साथ देना चाहिए। देखिए, मैं जा रहा हूँ और आपकी बेटी की मर्जी पर इस बात को छोड़ रहा हूँ। अगर ये आपके साथ जाना चाहती है तो शौक से चली जाए और आइंदा मुझे कभी याद ना करे। अगर मुझसे मोहब्बत करती है तो मेरे पीछे पीछे चली आए। इतना कहकर नौजवान सपेरा अपने खेमे की जानिब चल दिया और थोड़े फासले पर पहुंचकर बलोची जबान में एक निहायत सुरीला गीत गाने लगा। जब वो अपने खेमे के नज़दीक पहुंचा तो शाहिदा भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई उसी तरफ चल पड़ी। आमों के दरख्तों के करीब पहुंचने के बाद वो रुक कर मुड़ी और मुड़कर एक नज़र बाप को देखा। फिर दोनों हाथों से चेहरे को ढांपकर दौड़ती हुई अपने खेमे में चली गई। नियाज खान, जो नजरें जमाए हुए शाहिदा को देख रहा था, उसकी गर्दन झुक गई और करीब था कि गश खाकर जमीन पर गिर पड़ता, मगर उसके साथियों ने लपक कर उसे संभाल लिया और आंसू बहाते हुए सब वापस चले गए। अब ज़ैनब भी और नियाज खान दोनों की हालत गैर हो चुकी थी। रोना चाहते थे, लेकिन आंखों से आंसू ना निकलते थे। बोलना चाहते थे, लेकिन जबान में हरकत ना होती थी। दीवार से सर टकराकर मर जाना चाहते थे, लेकिन ना उठने की सकत थी, ना हिलने की। इसी तरह शाम हुई और शाम से सुबह। दिन गुजरा और रात की तारीकी चारों तरफ फैल गई।
لیکن کیا مجال کہ دونوں میں سے ایک نے بھی ذرا کچھ کھایا پیا ہو۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ہر ملازم رو رہا تھا۔ ہر ایک کو یقین تھا کہ یہ دونوں مر جائیں گے یا پاگل ہو جائیں گے کہ اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی۔ ملازم دوڑتے ہوئے دروازے پر گئے۔ ایک نوجوان حسین و خوبصورت لڑکی سر پر سانپ لپیٹے مسکرا رہی تھی۔ ملازم ایک طرف ہٹ گئے اور وہ کہنے لگی، خان صاحب کہاں ہے؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ ملازموں نے خان صاحب کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کمرہ ہے ان کا۔ لڑکی اٹلاتی ہوئی نیاز خان کے کمرے میں گئی۔ چند لمحے تو دروازے پر کھڑی ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی، پھر دوڑ کر قدموں میں گر پڑی۔ ابا جان، تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے؟ بیٹی، میری شاہدہ، تم آ گئی؟ کیا میں جاگ رہا ہوں یا؟ سچ بتا میری شاہدہ، کیا تو حقیقت میں میرے پاس آ گئی؟ نیاز خان جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ شاہدہ بولی، ہاں ابا جان، میں آپ کے پاس آ گئی ہوں، ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ نیاز خان اور زینب بھی دونوں نے اسے چمٹا لیا۔ پھر نیاز خان نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ملازموں سے کہا، حسنہ کو بلاؤ، اس کی بہن آئی ہے، جلدی بلاؤ۔ حسنہ آئی اور حیرت سے شاہدہ کو دیکھنے لگی۔ نیاز بولا، یہ تمہاری بہن شاہدہ ہے، اس کے لیے میں تم کو اٹھا کر لایا تھا، اب تم دونوں ہنسی خوشی رہا کرنا۔ اسی وقت ملازموں نے آ کر اطلاع دی کہ کچھ خانہ بدوش اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ نیاز خان پھر سہم گیا۔ وہ سمجھا کہ شاید وہ لوگ اسے واپس لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے کہا، اندر آنے دو۔ سپیرا، جو قبیلے کا سردار بھی تھا، وہ آگے آیا، باقی لوگ پیچھے کھڑے رہے۔ سپیرا بولا، خان صاحب، یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہمیں آپ کی دولت کا لالچ نہیں، ہم آپ سے ڈرتے بھی نہیں، لیکن پھر بھی ہم نے آپ کی بیٹی آپ کو سونپ دی۔ آپ نے ہماری بیٹی کو اس لیے اٹھایا تھا کہ آپ کی بیٹی تنہائی محسوس نہ کرے، لیکن ہمیں اس بات کا احساس تھا کہ آئندہ چل کر آپ ہماری بیٹی کو ایک ذلیل اور کمینے سپیرے کی بیٹی کہہ کر اس کی زندگی خراب کریں گے، اس لیے ہم آپ کی بیٹی کو لے گئے تھے۔ اب آپ کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں میں سے ہر ایک سپیرے کی بیٹی ہے۔ آپ دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھیں گے۔ ہم خانہ بدوش غریب ضرور ہیں، لیکن اپنی عزت کی خاطر سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ یہ کہہ کر سپیرا اپنے ساتھیوں کو لے کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ پیارے دوستو، عزت بڑی چیز ہے۔ ہر کام کو کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ اس کام کے کرنے میں آپ کی عزت ہوگی یا نہیں۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں RG اردو سٹوری۔ شکریہ۔